Hello students, today we see more questions on three-hinge arch. So students, before we start this lecture, you see lecture number 14 where we solved questions on semicircular arch, semicircular three-hinge arch. Here we solved parabolic arch, right? So we see the questions on three-hinge parabolic arch. So let's start with the questions on parabolic arch. Students, parabolic arch means that shape is parabolic, right? So start with the parabolic arch. Question number 1. A three-hinge parabolic arch hinged at the support and at the crown has a span of 24 meter and a central rise of 4 meter. It carries a concentrated load of 50 kilonewton at 18 meter from left and a UDL of 30 kilonewton per meter over the left half portion. Determine the moment, thrust and radial shear at a section 6 meter from the left end. Right. So students, here we make a diagram as per statement of questions. The arch is given, three-hinge arch. Here left portion is applied with UDL load, that is 30 kilonewton per meter, and at the right portion applied unit load, that will be the 6 meter away to right side and the 18 meter to the left side, right? So here in this point, at this point we applied the 50 kilonewton load. The rise of the arch is 4 meter. So students, here we find the thrust and radial shear moment, thrust and radial shear हमें find out करना है. कहाँ पे find out करना है? 6 मीटर from the left end. तो हमें लेफ्ट हैंड यहाँ से 6 मीटर इस पॉइंट पे हमें रेडियल शियर फाइंड आउट करना है, थ्रस्ट फाइंड आउट करना है और मोमेंट फाइंड आउट करना है. So students, first we start the question. We find the number of unknown forces. Here we find the VA, HA, H or VB. So first we find the VA. So taking moment about point B, taking moment about point B. So taking moment, that is the VA into 24, that is downward force taking that direction is anti-clockwise. So 30 into 12 into 12 का हाफ क्या हो गया? 6 प्लस दिस वन 12 क्या हो गया? 18 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस यूनिट लोड क्या लग रहा है आपका 50 किलो न्यूटन. इसका मोमेंट क्या आएगा? 50 into 6, दैट इज इक्वल टू 0. सो हियर वी ए, हमने यहाँ से वी ए निकाल लिया, दैट इज 282.50. We know summation of all vertical forces is equal to 0. So all vertical forces का summation करेंगे, that is the VA plus VB equal to 30 into 12. 30 into 12 total force क्या हो गया डाउनवर्ड? 30 into 12 plus 50. तो यहाँ से VA की वैल्यू पता है, VB निकल जाएगा, that is VB क्या आएगा आपका? 127.5 kilonewton. Okay students, now we find the H. So to find the H, we taking the moment about the crown, राइट. आप राइट वाला लेफ्ट वाला पोर्शन ले सकते हो या राइट वाला, राइट. तो मैंने यहाँ पे आपका लेफ्ट वाले पोर्शन से सोल्व किया है, सॉरी राइट वाले पोर्शन से सोल्व किया है. तो हियर यू सी वी बी इंटू 12. हम मोमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं? क्राउन के अबाउट. तो बी बी इंटू 12, डिस्टेंस क्या हो गया? 12 माइनस एच इंटू 4, हाइट क्या होगी? एच का जो फोर्स लग रहा है दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपका? राइज. राइज कितना? 4 माइनस 50 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बीबी कितना है अपना? 127.5 इंटू 12 माइनस एच इंटू 4 माइनस दैट विल 300. तो यहाँ से एच आया आपका 307.5 किलो न्यूटन. स्टूडेंट साइन कन्वेंस वही ले रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट. Here now we find the at 6 meter from the left end,
तो हमारा जो मोमेंट है वो क्या रहेगा, दैट विल बी द VA इंटू 6, राइट। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हाँ 6 मीटर पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोमेंट। तो क्या आएगा, VA इंटू 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 6, HA इंटू वाई डी माइनस HA इंटू वाई डी, और ये आपका फोर्स है, ये आपका डाउनवर्ड फोर्स है, इसका भी मोमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट। तो क्या आएगा 30 इंटू 6 इंटू 6/2, ओके 30 इंटू 6 इंटू 6/2। तो ये आपका मोमेंट आ गया एट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। हमें पता है पैराबोलिक आर्च है, तो हमें यहाँ से y निकालना पड़ेगा। तो y क्या होगा, y के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाय द पैराबोलिक प्रॉपर्टीज से हमने फाइंड आउट किया है। तो हियर वी फाइंड द y इक्वल टू 4hx l माइनस x डिवाइड बाय l स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे हमें y फाइंड आउट करना है, बाय दिस फॉर्मूला हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ठीक, h के आपका नंबर राइज है, x है, जितने डिस्टेंस पे हमें y फाइंड आउट करना है, l क्या होगा टोटल स्पेन, राइट। तो हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है y, दैट इज द YD। तो हमें 6 मीटर पे फाइंड आउट करना है, तो पुट कीजिए वैल्यू 4 इंटू 4, राइज कितना 4, x कितना है 6 मीटर पे फाइंड आउट करना है, 6 पुट कर दिया है हमने यहाँ पे। l क्या आपका 24 माइनस 6 डिवाइड बाय 24 का स्क्वायर इक्वल टू 3 मीटर। नाउ फाइंड m इक्वल टू 282.5 इंटू 6 माइनस 307.5 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 6 स्क्वायर बाय 232.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारा जो m आएगा दैट इज 232.5 किलो न्यूटन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने m निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, जो नॉर्मल थ्रस्ट है वो निकालना है और रेडियल शियर निकालना है। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर निकालने के लिए हमें वर्टिकल शियर चाहिए होता है, तो उसी पॉइंट के लिए हम वर्टिकल शियर निकालेंगे। तो वर्टिकल शियर क्या होगा, जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे, वो माइनस प्लस करके वहां पे वर्टिकल शियर आ जाता है उस पॉइंट पे। तो हमारा क्या है यहाँ पे d है, तो d के आपने इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है VA, भाई वर्टिकल शियर वर्टिकल फोर्सेज का बैलेंस, ठीक है। तो VA माइनस 30 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, V कितना आ गया 102.5। अब रेडियल शियर निकालने के लिए नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा चाहिए हमें, थीटा। तो थीटा हम किससे निकाल सकते हैं, हमें पता y ये है, तो हम यदि d हमें इसका डेरिवेशन करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज द थीटा। तो हम ये जो ये इक्वेशन है हमारी, इसका हम डेरिवेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज द tan थीटा इक्वल टू 4h l माइनस 2x डिवाइड बाय l स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आगे डेरिवेशन। हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 6 मीटर पे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी l की वैल्यू और x की। तो यहाँ से थीटा आ गया दैट इज द 18.435। नाउ वी फाइंड द नॉर्मल थ्रस्ट। अब सारे जो पैरामीटर है हमें नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड आउट करने के लिए और रेडियल शियर फाइंड आउट करने के लिए सारे चीज हमें नोन है, तो हम सेम सारी चीजें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें जो फॉर्मूला पता है नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड आउट करने का, दैट इज दिस वन, दैट इज n इक्वल टू v sin थीटा प्लस h cos थीटा। तो v हमने निकाला यहाँ पे वर्टिकल शियर, दैट इज द 102.5 sin थीटा हमें पता ही है, दिस वन। h हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, एंड थीटा हमने पता ही है, वही थीटा हमारा 18.435। तो यहाँ से हमारा n आ गया 324.133 किलो न्यूटन। Now we find the radial shear। तो रेडियल शियर का फॉर्मूला क्या होता है, v cos थीटा माइनस h sin थीटा। Here now put the value v and h, also put the value theta, right। By the calculation we find q, that is a 196.5 kilonewton, okay। तो ये न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया, वेरी इजी था, ठीक है। इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है, जैसे हम अननोन निकालते हैं या वैसे निकालते थे, केवल यहाँ पे हमने y निकाला और थीटा निकाला। भाई y के निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 4h ब्रैकेट l माइनस x और l स्क्वायर, राइट। और देन वी फाइंड द थीटा बाय दिस फॉर्मूला टेकिंग ए डेरिवेशन। तो हमने यहाँ पे थीटा और निकालो, और हमने जो भी जैसे हम पहले फॉर्मूला पुट करते थे नॉर्मल थ्रस्ट के लिए, सेम वो फॉर्मूला पुट किया है। रेडियल शियर के लिए सेम वही फॉर्मूला पुट किया है जो पहले करते आए हैं।
ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे अप्लाई किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। पैराबोलिक आर्च है तो आपका यहाँ पे देखो आर नहीं है, आर आपका सेमी सर्कल के केस में आता है, तो आर के केस में आपका जो भी है ये वाई है वो आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे यदि आपको वाई निकालना है तो वाई आप बाय दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, राइट। 4h x l minus x l square. Now we see the students another numerical. A symmetric three-hinge parabolic arch has span of 30 meter and a central rise of 6 meter. The arch carry a distributed load which varies uniformly from 40 kilonewton per meter at each abutment to 0 at mid-span. Determine the horizontal thrust at the abutment, and next what will be determined? Maximum positive bending moment in the arch. तो हमें चाहिए, एक तो हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालनी है और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है आर्च में वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये आपकी 3 हिंज आर्च गिवन है, यहाँ पे 30 मीटर स्पेन है, राइज आपका 6 मीटर है, और जो लोड है, लोड विल बी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम द 0 एट द क्राउन एंड मैक्सिमम एट द एंड। सेम हेयर है, सिमेट्रिक है, तो सेम हेयर है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर आपका क्या है मैक्सिमम आपके एंड पे और J0 क्राउन पे, राइट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें H निकालना है और V निकालना है जो अननोन फोर्सेज है, और उसके बाद हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम V तो इजीली निकाल सकते हैं, H भी इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले अननोन फोर्स का गेम खेलते हैं। ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, जस्ट हाफ कर देंगे फोर्स का, हाफ इस साइड जाएगा आपका, हाफ उस साइड जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो V है इक्वल टू VB है, दैट इज इक्वल टू टोटल लोड क्या होगा आपका 1 इंटू टोटल लोड। तो टोटल लोड है आपका ट्राइंगल, तो जो आपका लोड है दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। दिस वन और दिस वन, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो आपका टोटल लोड क्या आएगा 1/2, हमने 1/2 इनके लिए किया है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इसका एरिया क्या है आपका ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 15 स्पैन स्पेस, स्पैन क्या 15 इंटू 40, दैट विल बी 300 किलो न्यूटन। तो VA आपका क्या आ गया 300 और VB कितना आ गया 300। तो दोनों जो जो लोड है आपका जो बैलेंस होगा बाय दिस दैट इज 300 एंड बाय द B एंड 300। नाउ वी फाइंड द H। H के लिए हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि H के लिए हम क्या करेंगे, क्राउन के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ले लीजिए या राइट साइड वाला पोर्शन ले लीजिए। टेकिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट C, so here we see VA into 15, VA into 15 minus H into 6, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 6 माइनस 1/2 into 15 into 40 into 10 इक्वल टू 0, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये आपका क्या है ट्राइंगल का एरिया 1/2 15 into 40 into 10, राइट। 10 कैसे आया, 10 मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपका क्या है इसका CG कहाँ पे एक्ट करेगा, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द दिस पॉइंट दिस ट्राइंगल CG एक्ट एट द 2/3, राइट। यहाँ से लेते, यहाँ से 1/3 होता है, यहाँ से 2/3 होता है, तो यहाँ से क्या होगा 2/3 इंटू दिस स्पेन, तो ये कितना 15, 2/3 करेंगे आपका 3 5 15 इंटू 2 5 इंटू 2 10, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका 10, तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ दिस ट्राइंगल रोड दैट इज इक्वल टू 0। H यहाँ से आ गया 250 किलो न्यूटन, राइट। तो हमने यहाँ से H फाइंड आउट कर लिया है, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से MX, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आर्च में कहाँ रहेगा, ओके। तो हम ये हाफ वाले पोर्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसमें तो सेम रहेगा, इसमें तो सेम रहेगा, राइट। तो हमने देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसमें दो चीजें हैं, आप यहाँ से x मानते हो या यहाँ से x मानते हो, वो कैसे डिसाइड करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ से इस एंड से यदि x डिस्टेंस मान के चलते हैं और उस x डिस्टेंस पे हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आपका जो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आपकी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। डिफिकल्टी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम इसका जो भी इसका मोमेंट लेंगे
इस वाले पोर्शन का, जो आपका वेरिंग लोड है, इस वाले पोर्शन का मोमेंट लेंगे तो ये आपकी किस कौन सी शेप में आएगा, दैट इज द ट्राइबजोडल शेप बन जाएगी। ट्राइबजोडल शेप बन जाएगी तो आपको इसका सेंट्रोइड भी निकालना पड़ेगा, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, फिर से सीजी निकालना पड़ेगा हमें इसका, ठीक है भाई। ट्राइबजोडल का सीजी भी निकालना पड़ेगा, तो सीजी के लिए भी फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, तो थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो क्राउन पॉइंट है वहां से एक्स मान के चलते हैं, और वहां से एक्स मान के चलेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेप फॉर्म होगी दैट इज द ट्राइंगल, और ट्राइंगल का हम सीजी इजी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम हियर एंड राइट। तो यहाँ से हमारे लिए इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो हम अभी जो एक्स निकालेंगे, तो एक्स जो मानेंगे हम यहाँ से क्राउन से एम एक्स के लिए क्या करेंगे, क्राउन से हम एक्स मान के चलेंगे, राइट। फ्रॉम द क्राउन से हम 0 एक्स इक्वल टू 0 लेंगे और फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट ए, एक्स की डायरेक्शन, राइट। so here we write taking origin a crown point C, the equation of parabola is given by x square equal to y that is equal to a। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें y भी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई y रहेगा भाई, ये डिस्टेंस x यहाँ इस पॉइंट पे x ले रहा है, तो यहाँ पे हमें y भी तो निकालना पड़ेगा, कितना y आएगा, तो y हम निकालेंगे by this parabola is given equation that is given by the x square divided by y that is equal to constant हमने a मान लिया कोई, राइट। तो हमें कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा, आप यहाँ पे कांस्टेंट यदि हम एट x इक्वल टू 15 ले ले तो y इक्वल टू क्या रहेगा 6। यदि x इक्वल टू 15 पुट करें तो y इक्वल टू क्या रहेगा 6, तो यहाँ से a आ जाएगा, a आपका क्या रहेगा दैट इज 37.5। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो x स्क्वायर इक्वल टू 37.5, a की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से y आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 37.5। तो यहाँ से हमने y निकाल लिया, y निकालना हमारे लिए आगे हमें यूज होगा y, तो हमने यहाँ से इजीली y फाइंड आउट कर लिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 37.5। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर वो y का वो पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे। स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला यदि x की वैल्यू यहाँ से लेते फ्रॉम हियर सो वी कैन यूज इजीली। सो यहाँ पे आप x के लिए दिस पैराबोला इक्वेशन यूज कीजिए और यहाँ से y हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, mx निकालना है, तो mx के लिए हम फॉर्मूला यूज कीजिए। mx निकालना है तो क्या हुआ h इंटू वाई माइनस 1/2 h इंटू वाई माइनस 1/2 x इंटू wx इंटू 2/3 x। देखिए ये ठीक है दिस वन, so here we taking, so from that side here we any force thrust will be act that is the h thrust लग रहा होगा that is the h, तो h लग रहा होगा तो h आपका h into y होगा, जो y होगा हमारा h that is the h into y, राइट। और ये जो आपका फोर्स लग रहा होगा ये क्या होगा आपका w, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, तो ये जो आपकी ये हाइट रहेगी ट्रायंगल की, ये आपकी बाय द सिमिलर ट्रायंगल रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हाइट दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपकी हाइट ऑफ ट्रायंगल होगी। तो हमें ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 दिस हाइट मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। तो मैंने वही किया यहाँ पे, यू कैन सी हियर hy minus 1/2 x into wx into 2/3, this is the cg of the triangle, तो वो क्या होगी 2/3 into x, राइट। तो हमने h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू पुट करी यहाँ पे माइनस 1/2 x into wx, क्या आपका wx हमने निकाला था दैट इज x बाय द सिमिलर ट्रायंगल रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, तो वो आपका क्या आएगा x डिवाइड बाय 15 into 40 into 2/3 into x। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी mx की दैट इज दिस वन। सो नाउ वी फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, वी टेकिंग द डेरिवेशन, हमें x
ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स के लिए रिस्पेक्ट में हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव रखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे निकालिए डेरिवेशन ऑफ अबव इक्वेशन दिस वन, taking the derivation of above equation this one, so that is 250 multiply by 2 divided by 37.5 minus 40 divided by 45, राइट। यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप एक बार देखिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेरिवेशन लिया, डेरिवेशन लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, 3, यहाँ पे 3 भी पुट कीजिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 रह गया है, ठीक है। यहाँ पे 3x² आएगा, ये थोड़ा यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक है। 40 डिवाइड बाई 45, यहाँ इसका डेरिवेशन लेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू x², 3 इंटू x² दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हम x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, राइट। और हम यहाँ देखिए x कॉमन लिया हमने, तो ये जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू इज 500 डिवाइड बाय 37.5 इंटू सॉरी माइनस 40 डिवाइड बाय 15x इक्वल टू 0, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनती है, एक तो हमारी x इक्वल टू 0 बनती है, एक हमारी बनती है 500 डिवाइड बाय 37.5 माइनस 40 डिवाइड बाय 15x। तो एक ये वाली इक्वेशन बनती है और एक ये इक्वेशन बनती है, दैट इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड दैट वैल्यू इक्वल टू 0, पुट दैट वैल्यू इक्वल टू 0, राइट। तो now we see at x equal to 0 give the crown point, यदि हम x equal to 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्राउन पॉइंट आपका, हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मोमेंट 0 है, राइट। बट हमें तो मैक्सिमम मोमेंट चाहिए, तो हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे। Here we see the next equation, put this value equal to 0, so here we find the x equal to 5 from the crown end, so now we put the value of 5 in the equations of bending moment, for the bending moment. So now we put the value of 5, here we find the 55.5 kilonewton meter at a x equal to 5 meter from the crown and at a 10 meter from the abutment। Okay students, तो स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो अननोन फोर्सेस थे वो फाइंड आउट किए, दैट इज द VA VB। तो हमारा जो सिमेट्रिक है, तो इजीली हमने जो टोटल फोर्स है उसको हाफ इधर डिवाइड कर दिया, हाफ VB को दे दिया और हाफ VA को दे दिया, राइट। नाउ वी फाइंड द H। तो H फाइंड आउट करने के लिए हमें मोमेंट लेना पड़ेगा क्राउन के अबाउट। इससे पहले भी ये करते आए हैं, जो H फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन में, तो हमें H के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट द C लेना पड़ेगा, मतलब क्राउन के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। तो या तो आप लेफ्ट वाले पोर्शन से ले लीजिए या राइट वाले पोर्शन से ले लीजिए। अभी हमें नेक्स्ट है, हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम मोमेंट हमें नहीं पता कौन कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो सबसे पहले हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि किस डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम मोमेंट आएगा। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ that distance in the equation of mx, so that easily we find the mx, maximum bending moment. So before that we find the distance, that is the yd, ठीक है, yd। So we find the y by the using the parabola equation, this one x square divided by y equal to 0। here we put the condition, if x equal to 15, तो हमारा y क्या होगा, 6 होगा। तो a यहाँ से क्या आ जाएगा, 15/2 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, y की x square by 37.5, राइट।
find mx. Now we find the mx. We consider any distance x from the ground. So here now we find the mx. तो mx फाइंड आउट करेंगे. मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो mx यहाँ ये x डिस्टेंस, यहाँ पे हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है. तो हमारा फोर्स कौन कौन लग रहा होगा, एक तो ये दिस वन फोर्स एंड दिस वन फोर्स h. तो h इंटू वाई इंटू दिस वन जो यूडीएल है वो. तो अभी हमारा यहाँ पे जो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जो एक्स डिस्टेंस को कवर करेगा, दिस वन पोर्शन इज ट्राइंगल. तो हमारा ये मोमेंट आएगा, इस लोड के कारण मोमेंट आएगा और एच के कारण मोमेंट आएगा. तो मैंने वही वैल्यू लिखी है यहाँ पे, एच इंटू वाई माइनस 1/2 एक्स. देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 इंटू एक्स. लेंथ आपका बेस हो गया इंटू दिस वन इज द हाइट. डब्ल्यू एक्स क्या हो गया, हाइट. तो डब्ल्यू एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू एक्स के लिए हम बाय द यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल रूल. मान लीजिए ये डब्ल्यू एक्स है, तो ये दैट इज द डब्ल्यू एक्स कंसिडर एंड दैट इज द एक्स. So by using the similar triangle rule we find this wx. तो आपका wx यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, जो उसकी वैल्यू है आपकी xy 15 इंटू 40. स्टूडेंट्स यहाँ पे 40 है आपका 40 एंड मल्टीप्लाई बाय द cg ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द क्राउन पॉइंट. सो दैट इज द 2/3x. तो ये वैल्यू आएगी 250x स्क्वायर बाय 37.5 माइनस 40x क्यूब बाय 45. For maximum bending moment we take the derivative with respect to x. तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला. डेरिवेटिव निकालने से हमें x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 5. तो जो 5 वैल्यू है वो हमने mx जो हमारा जो इक्वेशन है mx की वहाँ पे पुट कर दी, वहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिली है. तो स्टूडेंट्स ये हमारा, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं आपके. एक दो क्वेश्चन आप ये जो अलग टाइप से वो आप अपने आप करके देखिए. वैसे आप ये भी क्वेश्चन अपने आप कर लोगे तो बेटर रहेगा. तो इम्पोर्टेंट जो भी बनता था, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करा दिए. 2 क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 14 में कराए हैं मैंने यार, 2 क्वेश्चन आपके आज कराए हैं. ठीक है, तो आप इनको एक बार देखिए, अपने आप इनको सोल्व कीजिए. यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी. तो स्टूडेंट्स टेक केयर टिल देन, बाय बाय.